Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So whatever news that has been reported in both of the newspaper would be covered in this edition, and we'll possibly try to cover the news in the pointer format, and whatever content that is not there in the newspaper would be covered by me. So let's get started. So before I begin, this is the topic list for the day. Today is 28th of November, and the first topic is India's malnutrition status. This is an editorial that has been reported in Hindu. Now, the second is Hetero to manufacture the Sputnik 5 vaccine in India. The third topic is not for dry swab RT PCR test. So, this is again a milestone in terms of the testing for the COVID 19 patients. The second last topic is Foreign Secretary visit to Nepal. So the Foreign Secretary has visited Nepal, and what are the outcomes of that visit? We'll discuss that. And the last topic is sea sparkle affecting the marine food chain, right? So how the sea sparkling is affecting the marine chain, and what are the other consequences that maritime ecosystem could have? We'll discuss that as well. So apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. So stay tuned till end of this session so that you could practice some important questions. So the first topic, that is from the Hindu. This is an editorial. This talks about India's malnutrition status and how there's an immediate need of the PDS and universalization of distribution of foods, item, common kitchens. These are some of the few solutions that would be needed. So this topic is very much important for your general studies paper 2 in say where the government programs and intervention are concerned, and at the same time this paper can be again relevant for your general studies paper 4 in the case study section. So in case study you can also use some of the folder point. So the two recent report has been discussed in this editorial. जो पहली report है, that is the state of food security and nutrition in the world 2020. उसके अलावे this is being released by the FAO, Food and Agriculture Organization. So FAO has released this report which is known as the state of food security and nutrition in the world. और जो दूसरी report publish की गई है, that is better nutrition and better tomorrow, right? This is by United Nations. So दो important report थे. This is a two important hunger report that were being published, or these show some of the important stagnation India's insecurity and malnutrition, right? India में जो present क्या status है, किस तरह से insecurity still persist, and जो malnutrition का level है वो कितना high है compared to other African countries and other neighboring countries, because the performance of India in terms of nutrition, malnutrition is very high. So these two reports become very significant and very important when we are discussing about the malnutrition in India. Now coming to the malnutrition part, so before I proceed, you have to know what is malnutrition. So malnutrition में कुछ चार important चीजें हैं जो cover होती है. So the first is undernutrition, which includes stunning, low height of the age, stunning होती है, wasting होती है. These are some of the consequences of malnutrition. Wasting के बारे में आपको पता होगा, वो एक ऐसी medical conditions है जहाँ पे बच्चे की ना तो proper height बढ़ पाती है, ना तो proper BMI उनके develop हो पाती है, जो कि हम कहते हैं body mass index, right? Now the person is underweight, and they have according to the age the weight is not being developed. Now obesity and diet related non-communicable diseases are some of the other consequences. Now उसके बाद माइक्रो डिफिशियंसी होती है, इनसफिशिएंस होने की वजह से भी देयर इज ओवरवेट एंड अंडरवेट की कंडीशंस आती है, एंड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट. सो दीज आर द important 5 components of the malnutrition. These entire together comprises a malnutrition, right? A condition of malnutrition is being developed. अगर बात करें परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस की, सो अर्बन, रूरल और जो हमारी शेड्यूल एरिया है उनमें कुछ परसेंटेज है इंडिया की. दिस इज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-06 की है. So the data might have changed presently, but urban area में average 33% की malnutrition देखी गई, rural area में 46%, and tribal people were the most affected with 55%. So this is a basic overview which is not there in the newspaper. For you it is essential कि आप इस चीज को जाने. Now coming to the globally recognized indicators, दो ऐसे बड़े indicators हैं जिसको use किए जाते हैं to understand कि what is the condition of the malnutrition. So the first is POU, जिसको कहते हैं prevalence of undernourishment, and the second is prevalence of moderate or severe food insecurity. This is
PMSFI, राइट। सो ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे अगर इनसिक्योर जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, दीज हैव द हाइएस्ट रेट ऑफ वेस्टिंग अमंग द अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो जितने भी और साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसके कंपेरेटिवली इंडिया की अगर कंपेयर की जाए तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है अफ्रीकन कंट्री से भी और साउथ एशियन कंट्री से भी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द POU एंड PMSFI। तो अगर मैं बात करूँ प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट का, सो दिस मेजर द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कंज्यूमिंग द इनसफिशिएंट कैलोरी। यहाँ पे जो ओवरऑल कैलोरी की इंटेक है वो कम होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, एंड द प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट सीवियर एंड फूड इनसिक्योरिटी नोन एज PMSFI ये आइडेंटिफाई करती है परसेंटेज ऑफ पीपल, ऐसे लोग हैं जो कि अपने हाउस होल्ड में सीवियरली मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी की वजह से रह रहे हैं, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू नरिश देमसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे हु लिव इन द हाउस होल्ड दैट आर सीवियरली और मॉडरेटली हैविंग फूड इनसिक्योरिटी। तो दोनों के आप बेसिकली डिफरेंस को समझ ले। यहाँ पे जो POU है यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिसमेंट होती है और PMSFI में आपको खाना ही नहीं मिल पाता है, राइट। तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का इशू ज़्यादा है। Now, in terms of the percentage, POU has declined to 24.7% between 2001 and 2018. चाइना की अगर बात करें तो इट इज 76.4%, नेपाल 74%, पाकिस्तान 42 और अफगानिस्तान इज अगेन 37 और बांग्लादेश 18। तो हमारे कंपेरेटिवली अगर देखें तो सिर्फ बांग्लादेश की परफॉर्मेंस खराब है, बाकी और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है दे आर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल कंपेयर टू द इंडिया। Now it is must to be noted कि जो decline है चाइना में that is higher compared to that of India, and that has started with a lower level of POU in 2000. Further पाकिस्तान और नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ पे जो POU है that is initial year successful reduction देखने गई है malnutrition में, but still India has to cope up things more faster. Therefore it is very necessary कि हमारी जो बेस POU है बेसिकली जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट है दैट शुड हैव टेकन केयर ऑफ अदर कंट्रीज, और यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ मल्टीपल डायमेंशन मैंने आपको बताया, अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग एंड बॉडी मास इंडेक्स, दीज आर सम ऑफ द की इंडिकेटर्स एंड द की कंपोनेंट दैट इंडिया नीड टू वर्क अपॉन टू गेट देयर प्रॉपर जो हमारी जो पॉपुलेशन है जो अंडर न्यूट्रिश है या जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार है उनको वी कुड फीड अप and we can increase our data. Now coming to the crucial element and that were excluded. So अगर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 की, so इंश्योर करती है किस तरह से एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फूड शुड बी देयर, अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए थी, बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं अभी भी दैट इज मिसिंग इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी। सो आई विल टेल यू व्हाट आर द पार्ट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड। सो बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारी ऐसे लिटिल डिसएग्रीमेंट्स थी दैट इज स्टिल परसिस्टिंग। कोविड-19 की वजह से सिचुएशन और वर्स हुई है और ऐसे लोग जो ज़्यादा वनरेबल है दैट इज स्टिल कंटिन्यूड। And through the temporary expansion, this coverage in the wake of the crisis, the problem of malnutrition is likely to deepen, right? और जहाँ पे इकोनॉमिक स्लम्स हैं दैट इज स्टिल बी सीन। तो यहाँ पे जो फूड आइटम्स की बात की गई है दैट इंक्लूड पल्सेस को एक्सक्लूड किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी से। सो इसके इंक्लूडेड बहुत ज़रूरी है, और कोई भी ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो, सोयाबीन हो या ऐसे जो फूड्स हों जो कि डाइटरी सपोर्ट देती हैं ऐसे पॉपुलेशन को जो अंडर नरिश्ड है, वो सारे एलिमेंट्स को भी नेशनल फूड सिक्योरिटी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। Now, what is the way forward? And immediate universalization of PDS is very important. तो PDS की universalization करना would be the first and foremost thing, and distribution of food items and community kitchen would be something what government can do. कोविड-19 के टाइम में जिस तरह से कम्युनिटी किचन बहुत हद तक देखने को मिली, बट स्टिल देयर इज नो मोर कम्युनिटी किचन, पीपल ट्राइड द हार्डर, बट दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी मेक ऑन अ परमानेंट बेसिस। जो नोबल पीस प्राइज अवार्ड की जाती है यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम में, दैट ऑल्सो शुड ब्रिंग सम फोकस बैक ऑन प्रेसिंग द इशूज ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड हंगर इन इंडिया। इंडिया में स्पेसिफिकली फोकस करने की जरूरत है। हमारी जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज और एशियन कंट्रीज वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। So India definitely need to work upon it. Now there is a need of the hour to remain the utilization and expansion of the existing program, जहाँ पे at least there's some part of ongoing malnutrition in the country is required, right? So these would be some of the way forward and performances that Indian government has to look upon. और बिना ये किए हुए it is very impossible कि जो हमारी malnutrition की जो रेशियो है, जो population है, जो numbers है हमारे पास वो कम हो पाए।
So these are the some of the things which India need to look upon. Now coming to the Hetero, the manufacturer of 100 million doses of the Sputnik 5 vaccine. So this is something which is important for your general studies paper 3. जनरल स्टडीज के पेपर 3 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस कुड बी अगेन रेलिवेंट. So according to the Russia Direct Investment Fund RDIF, this is a nodal body who is manufacturing the Sputnik 5 vaccine. उन्होंने इंडिया के जो ड्रग मेकर हैं हेट्रो उनको एक ऑप्शंस दिए हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए परमिशंस दिए हैं कि आप 100 मिलियन ड्रग्स के जो डोजेज हैं वो बना सकते हैं रशिया स्पुतनिक 5 वैक्सीन के. दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2021. सो इंडिया में 3-4 ऐसे बड़े कंपनी हैं. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके बाद कोवैक्सीन बन रही है भारत बायोटेक की तरफ से, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हैं, एंड द फोर्थ इज हेट्रोडक्स दैट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स इन इंडिया. Now these firm, that is Hetero, is expected to produce the doses over the courses of the year. पूरे साल इसकी चलेगी जब तक इंडियन पॉपुलेशन को कैटर ना कर लिया जाए. वी स्टिल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 136 करोड़, राइट. तो इसको कवर करना इट वुड टेक नन लेस देन 9 to 8 months. Now the vaccine production here may also be used to fulfill the demand of the other countries. और सिर्फ हमारे कंट्रीज के लिए नहीं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया ने कमिट किया हुआ कि we would also be supporting you, तो वहाँ पे भी we would be providing the drugs to that country as well. ना क्लिनिकल टेस्ट बाय इंडिया, क्योंकि जो भी टेस्ट होनी है स्पुतनिक 5 की रशिया में चल रही है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया में भी टेस्ट किए जाएंगे. जो लेटर स्टेज ऑफ क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं दैट वुड बी शेयर्ड बाय द जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है हैदराबाद बेस्ड, उनके साथ भी डेटा शेयर किए जाएंगे. इन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंटरम एनालिसिस, जो डेटा कलेक्ट की जाएगी स्पुतनिक 5 की, रशिया उसके साथ शेयर करेगी. और अभी तक जो रशियन वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है वो 91% रही है, 91.4%. Now vaccine that is being developed, request for more than 1.2 billion doses has been coming from 50 countries. रशिया के पास बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने डिमांड किया है, बट बीइंग गुड रिलेशनशिप विथ रशिया हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टेड इंडिया. तो यहाँ पे रशिया ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए कुछ 1.2 बिलियन डोजेस भी देने की बात की है. एंड द वैक्सीन सप्लाईज फॉर द ग्लोबल मार्केट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द RDF इंटरनेशनल पार्टनर्स, जहाँ पे इसके अलावा ब्राज़ील, चाइना, साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज वुड बी बेनिफिटेड. एंड स्पुतनिक 5 मेकर्स सेज दैट वैक्सीन वुड बी प्राइस्ड एज $20 per person, राइट. सो $20 पर पर्सन के आसपास होगी. इन इंडिया इट इज एक्सपेक्टेड कि हम अगर INR में बात करें तो दिस वुड बी कॉस्टिंग यू समवेयर क्लोज टू 1000 rupees. This would be not more than that because government is going to subsidize this vaccine. Now the other topic is not for dry swab RT-PCR test, because PCR test is something which has been constantly in the news amid the COVID-19 pandemic. तो ये वाला जो point है, this is very much relevant for your prelims examination, and some concepts related to this would be again relevant for your general studies paper 3. सो द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने अप्रूवल दिया है CSIR को, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ताकि वो अपने कमर्शियली जो गेम चेंजर ड्राई स्वैब RNA एक्सट्रैक्शन टेस्टिंग COVID-19 के लिए है उसको आगे प्रोसीड कर सके. So this is being developed by the research team of the CSIR, and it will be giving the authorities to scale up the fraction of current cost of convection. जो PCR test जो conventionally जिस method से use की जाती थी, now they would be using the dry method, and this method is something which would be giving another leap in terms of the diagnostic processes. तो कॉस्ट सेविंग टेस्ट भी है, कंपेयर करें अगर जो नॉर्मल PCR टेस्ट होती थी उसके मुकाबले जो ड्राई टेस्ट होगी दैट वुड बी मोर कॉस्ट सेविंग. एंड दिस इज एडवाइजरी परमिटिंग द यूज ऑफ CSMR जो मेथड स्वैप्स हैं, जो स्वैप्स होंगे वहाँ पे दैट वुड बी कॉस्टिंग लेस, और जो इवेल्युएशन प्रोसेस है दैट वुड बी इन अकॉर्डिंग्स टू दैट, और इसकी जो एक्यूरेसी रेट है, जो सक्सेस रेट है दैट वुड बी क्लोज टू 96.9%. तो दिस इज द एक्यूरेसी रेट ऑफ द ड्राई स्वैप टेस्ट्स. Now coming to the advantages of the dry swab test, PCR जो टेस्ट हैं, सबसे पहले ये कन्वेक्शनल मेथड जो है जहाँ पे आप नेसोफेरेग्नल के हिसाब से नोज और एंगोफेगल थ्रोट से जो स्वैप्स लिए जाते थे, नाउ दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड. इस तरीके में द सैंपल इज जनरली प्लेस्ड इन द लिक्विड कॉलेज वायरल ट्रांसफर्सल मीडियम VTMS को रखा जाएगा. और जो ड्राई स्वैब है दैट वुड बी डन नॉट टू रिक्वायर द RNA एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. दिस डज नॉट रिक्वायर द RNA एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, सो द टाइम वुड ऑल्सो बी सेव्ड इन दिस प्रोसेस.
और जो PCR टेस्टिंग है दैट वुड हैव द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी विच सिमिलर टू द गोल्ड स्टैंडर्ड. नाउ अकॉर्डिंग टू द CSR डायरेक्टर, जो CSR के डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक जो ड्राई स्वैप टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, दिस इज ईजी टू इम्प्लीमेंट और कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे नए किट्स हो, एक्सिस्टिंग मैन पावर की जरूरत पड़े, बिकॉज जो लोग पहले से टेस्ट कर रहे थे दे आर इक्वली अवेयर हाउ टू यूज दिस मेथड और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड दिस वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द COVID-19 इन इंडिया, राइट. तो ड्राई स्वैप्स के बारे में प्रीलिम्स से सवाल आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, तो इसके बारे में आप चीज़ों को समझ लें. Now coming to the other news, that is foreign secretary to visit Nepal. उन्होंने विजिट किया था, उसके विजिट के बाद जो भी important outcomes है we'll discuss that. So this news has been reported in the Indian Express, or this is important for your general studies paper 2 in terms of the IR section. So in the recent visit to Nepal, जो हमारे foreign secretary है, he has said कि India and Nepal are on the same pace of sharing the same vision. And he met the Nepal leadership to discuss the boundary issues. इंडिया और नेपाल के बीच में अभी रिसेंट में जो बाउंड्री इशूज थी, नेपाल ने नए मैप जारी किए थे लिम्पा दुर्वा, लिपू लेक और उस एरियाज में. सो बिकॉज ऑफ विच द टेंशन हैज़ एक्सकेलेटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो उसके तरफ एक सॉल्यूशन की तरफ ये इनिशिएटिव ली जा रही है, नेपाल की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी. तो आफ्टर मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर दे हैव स्ट्रेस्ड अपॉन रिस्पेक्टिंग ईच अदर सेंसिटिविटीज़. जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना, ना ही उसी चीज़ को समझना, बल्कि एक दूसरे के कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ हिमालयन नेशन, जहाँ पे जो फोरमोस्ट फ्रेंड्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट दैट वुड बी द प्रायोरिटी फॉर इंडियन गवर्नमेंट. तो टॉप नेपाल लीडरशिप है, दे हैव डिस्कस द बाउंड्री इश्यूज एज वेल. जो बाउंड्री इशूज मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे मैप पर लेकर को काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुई थी, दिस ऑल्सो हैज़ बिन डिस्कस्ड एंड ऑलमोस्ट दिस प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ना 4 पिलर ऑफ रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इंडियन रिलेशनशिप विद नेपाल रेस्ट विद 4 पिलर. दिस इंक्लूड डेवलपमेंट कोऑपरेशंस, strong connectivity, expanded infrastructure and economic project, easier and enhanced access to educational opportunities in India for young people of the Nepal. तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ताकि एक स्किल एक्सचेंज हो सके, क्वालिटी डेवलपमेंट हो सके इंडिया में, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, दीज आर सम ऑफ द फोकस एरिया दैट इंडिया लुक अपॉन. Now coming to the sea sparkle affecting the maritime food chain. So this has been a news that has been reported from the region of the southern India. और यहाँ पे मंगलुरु की जो रीजन है वहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ फाइंडिंग की है कि किस तरह से मैरीन फूड पॉपुलेशन को अफेक्ट हो रही है, राइट. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3. और यहाँ पे भी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ कभी भी जब आपको न्यूज़पेपर में मिले तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकती है, बिकॉज IOFS जो इंडियन हमारे फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम और प्रीलिम्स के एग्जाम दोनों एक तरह की है. तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बायो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्वाटिक एनिमल्स वो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Now, according to the Central Marine Fishes Research Institute, एक स्टडी की गई थी कर्नाटका रीजन में, जहाँ पे ये पाया गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, जिसको डाइटॉम्स भी कहते हैं, दे वर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैरीन फूड चेन्स. और कर्नाटका कोस्ट पे ये विटनेस किया गया है कि जो सी स्पार्कल है दैट हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. सो दिस ब्लूम इज ऑल्सो नोन एज नॉटिकुला Scintillans. This is commonly known as sea sparkle. इसको commonly sea sparkle के नाम से भी जानते हैं आप. ये साइंटिफिक जो नेम है उसको भी ध्यान रखें. And according to the scientists, this have deprived more of the phytoclinical fish. और जो बायोल्यूमिनेसेंट लाइट आती है ऐसे स्पार्कल, सी स्पार्कल से, दैट हैज़ ऑल्सो ब्राइटन द सी वाटर ड्यूरिंग दिस नाइट. और इस तरह की सी स्पार्कल आपको इंडिया के और भी कुछ जगह में, गुजरात वाले रीजन में या मुंबई में, महाराष्ट्र में भी कुछ रीजन में देखने को मिली है. बट द ब्लूम हैज़ बिन विटनेस्ड मेजरली इन द कर्नाटका रीजन. ना टॉक्सिक सब्सटेंस की अगर बात करें कि हाउ टॉक्सिसिटी हैज जनरेटेड, सो द स्पीसीज डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिन मच, बट इट वाज बीइंग फाउंड कि जो उनकी एक्युमुलेशन है दैट हैज़ लेड टू द हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत हाई हो जा रही है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग वाटर है पॉसिबली एक्टिंग एज अ किलिंग एजेंट इन द ब्लूम.
राइट। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए कि कौन से ऐसे एजेंट है जिस ब्लूम की वजह से जो हमारे सराउंडिंग एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल है, उनको इम्पैक्ट हो रहा है, सो द आंसर वुड बी अमोनिया। नाउ दिस इज द इमेज, दिस विल हेल्प यू कि जो फूड चेन है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि फूड चेन सीवियरली इम्पैक्ट होती है। तो अगर बात करें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ऑर्डर जो कंज्यूमर्स हैं, इंटरमीडिएट प्रेडेटर्स और टॉप प्रेडेटर्स, सो दिस इज हाउ द मैरीटाइम इकोसिस्टम वर्क। और किसी भी एक लेवल पे अगर प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं ये चारों लेवल पे इफेक्ट करेगी, राइट। सो आपने इसको शंकर आईएएस की जो बुक है वहाँ पे भी पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के, अगर आपने एनसीईआरटी एनओआईएस की भी बुक रेफर कर रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द गुड रेफरेंस दैट यू कैन रेड फॉर द इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बुक लिए एनसीईआरटी और एनओआईएस दोनों भी आप रेफर कर सकते हैं। Now coming to the answers, so for the yesterday questions we are giving you the correct option and answer. The first option is for the first question, the correct option here is C, that the president can resign anytime from his office by addressing the resignation letter to the chairman of the Rajya Sabha or vice president. And the second statement is also correct, that the president can hold office beyond the time of 5 years until the successor assumes the charges. So these are the provision that has been provided in the constitution. If you want to read more, you can refer to the M. Lakshmikant की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं। Now coming to the second question, statement, the correct option here is B. Statement 1 is incorrect, that the cyclonic rainfall is common in the mid latitude and not in the equatorial region. And statement 2 is again correct, that the cyclonic rainfall occurs where wind blow from all sides towards the center of the low pressure and they have a spiral motion to the great speed. This can count the whirling air to rise up, right? So ये correct options हैं, आप check कर ले अगर आपके पास जो आपने आंसर मार्क किया whether this is correct or not. Now coming to the today's MCQs question of the day. So the first question is from Indian history, modern history से है ये. With reference to consider statement, ये आपको दो statement उसको consider करना है. The Brahmo Samaj pioneered the cause of widow remarriage, and Padnir Ishwarchand Vidyasagar proactively participated in it. So these are the two statements. You have to consider it and only write A, B, C, D in the answer. If you have any additional information, that also you can share with us in the comment section down below. Now the second question is from the Indian culture. आपको बताना है कि prehistoric painting के regarding कौन कौन से statements correct हैं. It helps us to understand about early human beings and food habits and the daily activities. And prehistoric period provide information about the evolution of human civilization. So this तरह के questions culture में काफ़ी ज़्यादा significant हैं and UPSC tend to ask this type of question. So it is very important that आप यहाँ पे practice करें. So just write A, B, C, D among your correct option, whatever you feel is the correct option, in the comment section down below and participate in the question answer series. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you want to know more informative videos, you can refer to the playlist section of our YouTube channel where compilation of Yojana Kurukshetra PRS is also there. That will help you to get an advantage in the preparation. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.